नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા અને જયસેન આચાર્ય ભગવાનની ટીકા તાત્પર્ય વૃત્તિ એનો સ્વાધ્યાય આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચન દ્વારા કરી રહ્યા છીએ. એમાં ચરણાનુયોગ સૂચક ચુલિકાનો બીજો ભાગ એટલે મોક્ષ પ્રજ્ઞાપન એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 240 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે કર્યો છે. હવે આજે ગાથા 241 લઈએ છીએ. 241ની ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે હવે આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન સંયત તત્વ એના યુગપદપણાનું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું જેને સિદ્ધ થયું છે એવા આ સંયતનું કયું લક્ષણ છે તે ઉપદેશે છે. સંયમી છે એનું કયું લક્ષણ છે અને સંયમી કેવા છે તો કે જેને આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન અને સંયમ એના યુગપદપણાની સાથે આત્મજ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું જેને સિદ્ધ થયું છે એવા સંયમી એના કેવા લક્ષણ છે એની વાત અહીંયા કરે છે. ગાથા 241 સંસ્કૃતમાં ગાથા આ રીતે છે. સમ શત્રુ બંધુ વર્ગ સમ સુખ દુઃખ પ્રશંસા નિંદા સમ સમલોષ્ટ કાંચન પુનર્જીવિત મરણે સમ શ્રમણ. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. નિંદા પ્રશંસા દુઃખ સુખ હરી બધુંમાં જ્યાં સામ્ય છે. નિંદા પ્રશંસા દુઃખ સુખ હરી બંધુમાં જ્યાં સામ્ય છે. વળી લોષ્ટ કનકે જીવિત મરણે સામ્ય છે તે શ્રમણ છે. 241મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે સમ શત્રુ બંધુ વર્ગ શત્રુ અને બંધુ વર્ગ જેને સમાન છે. સમ સુખ દુઃખ સુખ અને દુઃખ જેને સમાન છે. પ્રશંસા નિંદા સમ પ્રશંસા અને નિંદા પ્રત્યે જેને સમતા છે. સમલોષ્ટ કાંચન લોષ્ટ એટલે માટીનું ઢેફું અને કાંચન એટલે સોનું. તો એ માટીનું ઢેફું અને સોનું કાંચન જેને સમાન છે. પુનઃ જીવિત મરણે સમ તેમજ જીવિત અને મરણ પ્રત્યે જેને ક્ષમતા છે. શ્રમણ તે શ્રમણ છે. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે સંયમ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પૂર્વક ચારિત્ર છે. સંયમ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પૂર્વક ચારિત્ર છે. ચારિત્ર ધર્મ છે અને ચારિત્ર ધર્મ એવા ચારિત્ર ધર્મ દ્વારા કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે અને મુક્તિ થાય છે. એટલે ચારિત્ર ધર્મ છે. ધર્મ સામ્ય છે. સામ્ય મોહ ક્ષોભ રહિત આત્મ પરિણામ છે. તેથી સંયતનું સામ્ય લક્ષણ છે. હવે એનો વિસ્તાર કરતા કહે છે કે પહેલી વાત કે શત્રુ બંધુ વર્ગમાં, બીજું સુખ દુઃખમાં, ત્રીજું પ્રશંસા નિંદામાં, ચોથું લોષ્ટ એટલે માટીના ઢેફા અને કાંચનમાં, અને પાંચમું જીવિત મરણમાં એકી સાથે શું છે એ બધામાં
સામ્ય છે તો કહે છે કે તેમાં સામ્ય કઈ રીતે છે તો કે એમાં કહે છે કે આ મારો સ્વપર છે, આ સ્વજન છે, આ આહલાદક છે, આ પરિતાપ છે, આ મારું ઉત્કર્ષણ કીર્તિ છે, આ અપકર્ષણ અપકીર્તિ છે, આ મને અકિંચિત કર છે, આ ઉપકારક છે એટલે ઉપયોગી છે, આ મારું ટકવું છે, આ અત્યંત વિનાશ છે. એમ આ 5 પ્રકાર કયા એમ મોહના અભાવને લીધે સર્વત્ર રાગ દ્વેષનું દ્વૈત જેને પ્રગટ થતું નથી. એને મોહનો અભાવ થયો છે એટલે બધી જગ્યાએ એમાં રાગ અને દ્વેષ થતા જ નથી. કોઈ પણ જગ્યાએ રાગ દ્વેષ થતા નથી. સતત વિશુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માને જે અનુભવે છે એ રીતે શત્રુ બંધુ સુખ દુઃખ પ્રશંસા નિંદા લોષ્ટ કાંચન અને જીવિત મરણને નિર્વિશેષપણે જ એટલે તફાવત વિના જ જ્ઞેયપણે જાણીને જ્ઞાનાત્મક આત્મામાં જેની પરિણતિ અચલિત થઈ છે એટલે આત્મામાં એને પરિણતિ રહે છે, એકમાત્ર આત્માની જ પરિણતિ છે એટલે સ્વરૂપનું લક્ષ્ય સતત રહે છે. તે પુરુષને જે ખરેખર સર્વતઃ સામ્ય છે તે સામ્ય સંયતનું લક્ષણ જાણવું. આવું સામ્ય જે છે આ સામ્ય ભાવ છે તે શ્રમણનું લક્ષણ છે, સંયતનું લક્ષણ છે કે જે સંયતને આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ જ્ઞાન સંયત તત્વ ના યુગપદપણાનું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સિદ્ધ થયું છે. તો આ રીતે 241મી ગાથા છે. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 10મો પાના નંબર 170. અહીંયા પહેલેથી શરૂ કરી અને ગુરુદેવ આપણને સમજાવે છે. मोक्ष मार्ग का अधिकार करते हैं. मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग. तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या, वो बात चलती है. 240 गाथा होगी, 241 उसका उपोद्घात पर है ना. अब आगम ज्ञान उनके अर्थ आएगा उसमें, और तत्वार श्रद्धान आयम सर्वज्ञ परमात्मा ये कहा हुआ जो शास्त्र है, सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा इच्छा विना जिसमें दिव्य ध्वनि निकलती है, वो दिव्य ध्वनि में जैसा आत्मा का सद्रव्य का स्वरूप आया ऐसा उसको अंतर में बोध हो तो उसको नाम आगम ज्ञान कहने में आता. समझ में आया? वास्तविक द्रव्य आत्मा गुण शक्ति द्रव्य शक्तिवान वर्तमान पर्याय अवस्था, ये अवस्था ना 2 प्रकार, कोई निर्मल ने कोई विकास. तो जैसी चीज है ऐसी पर चीज भी जैसी द्रव्य गुण અને शक्ति અને पर्याय है, उसमें स्वतंत्रता सब अपना द्रव्य गुण पर्याय रखता है. ऐसा अंतर में आगम ज्ञान से अंतर में बोध सम्यक संवेदन होना चाहिए. ज्ञान ज्ञान से जानने में आवे उसका नाम आगम ज्ञान है. समझ में आया? ज्ञान की वर्तमान पर्याय जो अवस्था चलती है वो पर्याय मानकर झुकने से ज्ञान का लक्षण जो जानना ऐसा वेदन में आया. क्या ज्ञान है, आत्मा जानू स्वभाव है, उसमें पुण्य पाप राग आदि वो आश्रव तत्व है, शरीर वाणी कर्म वो अजीव तत्व है.
मेरी चीज में वो आश्रम नहीं, आश्रम में मैं नहीं, कर्म में आश्रम नहीं, आश्रम में कर्म नहीं, शरीर में कर्म नहीं, कर्म में शरीर नहीं। समझ में आते हैं? अनेकांत केतन आगम का चिन्ह है, अनेकांत ध्वजा। सब पदार्थ अपने अपने से है, पर से नहीं। पर से है, अपने से नहीं। एक एक गुण अपने से है, दूसरा गुण से नहीं। अपनी वर्तमान चालती पर्याय अवस्था से है, वो पर से नहीं। पर अनंत पदार्थ की वर्तमान पर्याय चालती है, वो उससे है, मेरे से नहीं। समझ में आते हैं? ऐसा आज्ञम सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा एक इच्छा विना दिव धनी निकले, उसकी आज्ञम रचना हुई। उसमें ऐसा कहा, ऐसा अंतर्बोध होना। पहले सम्यक ज्ञान, उसमें आज्ञम ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? तत्वार्थ ध्यान, पीछे सम्यक दर्शन। और राग ने विकल्प ने पुण्य पाप आश्रव तत्व है, उससे रहित मेरी चीज पूर्ण शुद्ध आनंद है। ऐसा प्रतीत में आत्मा का स्वाद पूर्व प्रतीत में आना, उसका नाम तत्वार्थ ध्यान सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि देवगुरु शास्त्र सच्चा है, सद्र एम नहीं, एम नहीं। एक किला भगवान विनायक मूर्ति, सात तत्व की श्रद्धा कहते हैं ना, तत्वार्थ ध्यान सम्यक दर्शन। तो जड़ जड़ रूप है, राग राग रूप है, दया दानो व्यवहार श्रद्धा व्यवहार रत्नोत्रय, वो विकल्प है, सब विकल्प रूप है। आत्मा निर्विकल्प चिदानंद स्वरूप है। ऐसी अंतर में ज्ञान का भान में ज्ञान का अनुसर के अनुभव हुआ, उसमें प्रतीत होना कि मैं आत्मा शुद्ध अखंड आनंद हूं। ऐसा प्रतीत में आत्मा का अतीन्द्रिय स्वाद का अंश लेकर अनुभव में प्रतीत हुआ होना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आया? उसका नाम तत्वार्थ ध्यानम कहने में, तत्वार्थ लिया है ना, तत्वार्थ में साथ ही आ गया। मैं विनायक हूं, ऐसा आत्मा में प्रतीत भान, विकल्प के बुद्धि का लक्ष्य छोड़कर अपना विकल्प बुद्धि का स्वभाव में एकाकार दृष्टि होकर ज्ञाता का भान होना, और आत्मा अतीन्द्रिय रस पड़ा है, उसका आत्मा में अविकारी स्वाद का, आत्मा का स्वाद का भान पूर्वक में प्रतीति होना, उसका नाम तत्वार्थ ध्यानम कहने में आता। समझाय છે કાંઈ? અત્યારે તો ગડબડનો પાર ન મળે, કઈનું કઈ માને ને કઈની કઈ। अरे भगवान, सारी चीज राग से जो मेरी चीज सही ऐसी मानी थी, तो आकुलता थी। तो आकुलता मेरी चीज में नहीं, ऐसी न्याय की प्रतीति हो, तो आकुलता रहित अनाकुल का स्वाद होकर, न्याय का भान होकर उसमें प्रतीति आत्मा, उसका नाम तत्वार्थ ध्यानम सम्यक दर्शनम कहने में आया। ये शिवाय दूसरी कल्पना करे कि ऐसे मानो न ऐसे मानो, देव मान्या, गुरु मान्या, छद्र मान्या ने, नव तत्व विकल्प ने राग से भेद से मान्या, वो सम्यक दर्शन है नहीं। और वो सम्यक दर्शन पूर्वक संयतत्व इस स्वरूप में सम्यक प्रकार लीन
अनाकुल शांति का व्यक्तपना बहुत होना, आत्मा का श्रद्धा पूर्वक आज्ञम ज्ञान पूर्वक अंतर में राग से हटकर, मन से हटकर स्वरूप में अनाकुलता की लीनता में जो एकाग्रता होती है उसको संयतपना, चारित्रपना, साधु पद कहते हैं। ओ यहाँ साधु है, बहुत लंबा चरित्र हो गए। वेज पलटिया ने जरी कई अहिंसा सत्यनी विकल्प उठ्या, चारित्र हो गया। अजी तो सम्यक दर्शन की भी खबर नहीं, तो चारित्र कहां से आया? तो कहते हैं कि संयत तत्व, संयतपना स्वरूप में इतना जम जाए कि निर्विकल्प शांति की परिणति उत्पन्न हो जाए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पूर्वक अकेला संयत होता नहीं, ऐसा संयतपना युगपत, युगपत तीनों को साथ, जिसको आज्ञम ज्ञान तत्वार्थ धन संयत युगपत्ता के साथ आत्मज्ञान की युगपता गरी विशेष लिया। ऐसी युगपत तो छठे गुणस्थान में भी होता है। मुनि को, भावलिंगी संत को छठे भूमिका में ऐसी 3 प्रकार की दशा का भान फिरता होती है। उसी सहित आगे बढ़कर आत्मज्ञान की युगपता, अप्रम दशा सप्तम गुणस्थान में भेद का विकल्प टूटकर अभेद रत्नत्रय आत्मा की साथ हो जाना, उसको नाम आत्मज्ञान कहते हैं। ये आत्मज्ञान चौथा गुणस्थान का एक किला ये नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भी आत्मज्ञान कहते हैं, पर वो दर्शन पूर्वक का आत्मज्ञान। यहाँ तो संयत पूर्वक दर्शन ज्ञान सहित संयत पूर्वक एकाकार अभेद रत्नत्रय में आत्मा परिणित हो जाए। विकल्प न रहे कि मैं साधु पद साधता हूँ, ऐसा भी विकल्प न रहे, ऐसी दशा को आत्मज्ञान कहने में आता है। समझ में आया? वो तीनों सम्यक ज्ञान दर्शन संयत हुआ, वो सहित अंतर में लीन होकर वेद का विकल्प छूटकर अभेद आत्मज्ञान की व्युत्पत्ता जिसे सिद्ध हुई है, जो आत्मा में वो तीनों सहित आत्मा की एकता रूप आत्मज्ञान साबित हुआ है, ऐसे ही संयत का क्या लक्षण है? ऐसे ही संयत का क्या लक्षण है? ऐसा इसका प्रश्न है। तो कहते हैं उसका उत्तर ऐसे जिज्ञासु हो, उसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई हो, उसको उत्तर देने में आता है। एक ताड़ी सम सत्तु बंधु बगो समसु दुखोपसंस निंद समो समलोठु कंचनो पूर्णम जीवित मरणे समो समणो। यानी टीका, संयम सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र है। देखो है टीका ने पहले, अर्थ करते हैं संयम क्या है? संयम किसको कहते हैं? कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र को संयम कहते हैं। इस सातवां का समाज समझे, सातवें ने चरितम खो सम्मो में, हाथमी मारी में पहले सर्वात में चरितम खलु सम्मो। समझ में आया है ना? हाथमी से हाथमी से बोला गुजराती यहाँ हो ना तो हाथमी का था पानु हमें गमे हो
जो साथ में चरितम खलु धम्मो धम्मो सो जो सो सम्मोति निधि हो मोहो विहीणो परिणामो अपनो समो। स्वरूप में चरण करना सो चारित्र है। टीका नहीं पहले लिखी 7वें गाथा में 7वीं गाथा। स्वरूप में स्वरूप शुद्ध विनायक मूर्ति अनंत शांति आनंद सहित का एक रूप आत्मा, उसमें चरण नाम रमना लीन होना, उसका नाम भगवान सर्वज्ञ देव चारित्र कहते हैं। स्व समय में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। चारित्र का अर्थ स्व समय। स्व समय नाम स्व अपना शुद्ध परमात्मा स्वभाव, उसमें रमण करना, इसका चारित्र का अर्थ है। समझ में आया? यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु जिसमें आनंद ज्ञान आदि वस्तुएं हैं, वस्तु जिसमें ज्ञान आनंद स्वच्छता शांति अकारण कार्य आदि शक्ति वस्तुएं है, उसका जो स्वभाव था शक्ति, उसमें एकाग्र होकर निर्मल पर्याय की परिणति होना, उसका नाम धर्म कहने में आता है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। राग नहीं, विकल्प नहीं, दया दान व्रत सबका विकल्प उठते हैं, सब शुभ राग है। पंच महाव्रत का राग भी शुभ राग है, वो चारित्र नहीं। समझ में आया? अहिंसा सत्यव्रत ब्रह्मचर्य न अपरिग्रह की वृत्ति उठती है, वो शुभ राग है। वो संयम नहीं, चारित्र नहीं, धर्म नहीं। धर्म शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, इसका अर्थ है। शुद्ध चैतन्य प्रभु आनंद से छलो छल भरा है। छलो छल का क्या शब्द है? लबालब। हाँ, तुम्हारी भाषा में हिंदी में के सब हिंदी आती है नहीं। लबालब भरा है भगवान आत्मा। आत्म पदार्थ जैसे तालाब में पानी छलो छल लबालब भर रहा है, एम भगवान आत्मा संग प्रदेश में आनंद और शांति और स्वच्छता आदि शक्ति से भर लबालब भरा है। आशा शुद्ध का प्रकाश पर्याय में होना, अपनी निर्मल दशा में वो प्रकाश शुद्ध चैतन्य का प्रकट होना, वितरागी परिणति प्रकट होना, उसका नाम भगवान चारित्र ने धर्म कहते हैं। व्याख्या भरी आखिरी पर जगत क्या क्या मानी ने बहन आ किरून आ किरून आ। समझ में आया? और वही यथास्थित आत्मगुणों ने से साम्य है। यथावस्थित अपना ज्ञान आनंद स्वभाव में यथावस्थित, जैम थे तेम अवस्थित निश्चय स्थिति अंदर आनंद में होने, उसका होने से उसको साम्य कहने में आता। और साम्य दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी के उदय से उत्पन्न होने वाला समस्त मोहन क्षोभ के भाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। संयम धर्म चारित्र क्या है कि अपना अनंत शुद्ध परिणामी पदार्थ, उसका परिणाम निर्विकारी, राग बिना, मलिनता बिना, शुभ राग बिना, निर्विकारी परिणति का प्रवाह चलना, उसका नाम भगवान चारित्र ने धर्म कहते हैं। वो समझ में आया? वो बात यहां दिया है। देखो, संयम तो चालती गाथा। संयम किसको कहते हैं? परमात्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्मा शुद्ध आनंद कंद है। राग देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा बका भी राग, वो भी मेरे चीज नहीं, मेरे में नहीं।
ऐसे जो आत्मा का सम्यक प्रतीत और सम्यक आत्मा का ज्ञान, वो पूर्वक संयम, लीनता, रमणता हो, उसको चारित्र कहते हैं। चारित्र धर्म है, वही चारित्र धर्म है। वस्तु का स्वभाव की शक्ति में से पर्याय में परिणति प्रकट हुए, उसका नाम चारित्र धर्म। ओहो, आई तो ऐसा होंगा कर दिया, लुगड़ा जड़ी कपड़ा फेर दे अने होय ठिकाना नहीं, श्रद्धा ना ठिकाना नहीं, ज्ञान क्या का ठिकाना नहीं, हो गया साधु। ठीक। अरे प्रभु, आहा, चारित्र हुआ तो मोक्ष हुआ। मानस होना मुश्किल है तो साध कहां से हो। साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, कहनी रही नहीं कोई। समझ में आया? अब तो मोक्ष मार्ग की बात चलती है ना, पूर्ण मोक्ष मार्ग की एकता, अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान हो पर चारित्र का अभेद साथ में न हो तो मोक्ष मार्ग की एकता होती नहीं। तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग एक है, तीन मोक्ष मार्ग नहीं। समझ में आया? तो उसको पहले समझ में लेना, श्रद्धा में लेना, ऐसा क्या है ऐसा ज्ञान का भी जिसके समझ में ठिकाना नहीं, वो रुचि कहां से करे न सम्यक दर्शन कहां से लावे। समझ में आया? तो कहते हैं कि धर्म साम्य है, धर्म साम्य है, समता शुद्ध उपयोग, सामना शुद्ध उपयोग, शुभाशुभ परिणाम से रहित साम्य समता शुद्ध उपयोग, साम्य मोह क्षोभ रहित हो, क्या साम्य मोह क्षोभ रहित आत्म परिणाम है। न्याय जीवना परिणाम निगम चल रहा अभी तो कोई के सम्यक दर्शन गुण है, जो ऐसी पर्याय की बात किया कि नहीं गुण है सम्यक। अरे सुन तो सही प्रभु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो आत्मा का गुण नहीं, मोक्ष मार्ग गुण नहीं, ये तो गुण की निर्मल परिणति रूप परिणाम पर्याय है। अजी द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, खबर नहीं, विरोध करे कि लो भगवान ने तो ऐसा कहे 8 गुण प्रगति सिद्ध ने, सिद्ध को 8 गुण प्रगति नहीं। तुम कहते हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र जो मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, भगवान कहते हैं कि 8 गुण प्रगति सिद्ध में, वो तो गुण है। अरे सुन तो सही, ये गुण नहीं, गुण तो त्रिकाल रहते हैं। आत्मा त्रिकाल, उसमें गुण भी त्रिकाल, उसका अवलंबन से निर्मल परिणति निर्विकारी सम्यक दर्शन ज्ञान में अरागी वितरागी परिणति हो, वो मोक्ष मार्ग पर्याय है। समझ में आया? संसार भी आत्मा की विकारी पर्याय है, गुण नहीं। समझ में आया? संसार कहाँ रहता है आत्मा का? शरीर में रहता होगा, बायडी छोकरा कुटुंब धंधा तमाकू ना बीड़ी में रहता होगा संसार। रतनलाल जी, घर की बात करिए ना शेष में, क्या रहता होगा आत्मा का संसार? संसार क्या है? संसार एक दोष रूप दशा। तो संसार दोष रूप दशा कहाँ रहती होगी? क्या अपनी संसार रूप संसरणम इति संसार है, शुद्ध चिद घन आत्मा में से नित्य संसर कर हटकर राग में धर्म है, पुण्य में लाभ है, पाप में सुख बुद्धि है, ऐसी जो दृष्टि मिथ्यात्व ने राग द्वेष वो संसार है। ये संसार शरीर में नहीं रहते हैं, ये कर्म में नहीं, बायडी छोकरा में नहीं, અને બીડીઓના તમાકુ વાળે એમાં સંસાર રહેતે। રતનલાલજી
भगवान संसार भी एक आत्मा की उपाधि रूप मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या राग द्वेष, वो दशा का नाम संसार है। संसार पर पदार्थ में नहीं, संसार अपना द्रव्य गुण में नहीं। है उसकी मान्यता विपरीत मान्यता न राग द्वेष में संसार है। संसार की खबर नहीं कहां से निकालना, कहां से लाना। चलो छोड़ो संसार, भाई छोकरा छोड़ा हो गया, संसार छूटे। अरे प्रभु तेरे संसार की खबर नहीं हो, समझ में आया? संसार वो तेरी वर्तमान दशा में मिथ्या श्रद्धा, मैं पर का करने वाला हूं, पर से मेरे में कार्य होता है, पुण्य परिणाम है तो धर्म है, वो अहिंसा महाव्रत आदि का परिणाम मेरे धर्म है, ऐसी मिथ्या मान्यता अने शुभ शुभ राग वो आत्मा की पर्याय में दोष है। दोषे संसार है। तो संसार भी अवस्था, मोक्ष मार्ग भी अवस्था, अने मोक्ष भी अवस्था है, पर्याय है। तीनों पर्याय है, तीनों गुण नहीं। समझ में आया? भगवान द्रव्य ने गुण तो त्रिकाल रहता है, गुण प्रकट नहीं होता, एम गुण आवरण भी नहीं होता। आवरण पर्याय में आवरण ने अपनी आवरण हो अपने कारण से, पर के कारण से नहीं, कर्म कर्म में रहा। तो कहते हैं कि परिणाम आत्मद्रव्य है, उसमें अनंत गुण धाम प्रभु आत्मा है। आज का अंतर अनुभव निदृष्टि ज्ञान पूर्वक समता शुद्ध उपयोगिता होना, वो मोक्ष शोभ रहित आत्मा का परिणाम है। क्या भाई जीवना परिणाम आयु थे हाथ में गाथा ना चलो चलो आयु तो नहीं जीव परिणाम हो तो क्या जीव परिणाम कहिए खूबी शब्द फेर फेर करने कितला कोई के जीवन आत्मा जुदी जाते, ऐसा नहीं, वो बताने को भिन्न भिन्न बात करते हैं। है। समझ में आया? चलो आयु तो जीव का परिणाम अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। तो कोई कहे कि जीव जुदा ना आत्मा जुदा, ऐसा नहीं। ये जीव को जीवन की अपेक्षा से जीव कहते हैं, और अपना स्वरूप में गच्छति आत्म गच्छति इति परम पदमित आत्मा, अपना दर्शन ज्ञान चारित्र में पर्ण में इसको आत्मा कहते हैं। वस्तु तो वो ही है, जीव कहो कि आत्मा कहो। क्या जीव परिणाम लिया था, यहाँ आत्म परिणाम लिया। समझ में आया? कोई कहे कि आत्मा तो तद्दन निर्लेप है, पर्याय में भी ऐसा नहीं, अने मलिन है वो जीव है, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं बोलो नहीं। भगवान एक बार सुन तो सही, अंतःकरण विशिष्ट थी जीव अने निर्मल थी आत्मा, एम कहते हैं। उसकी सामने आ दलील है। ऐसा है ही नहीं, तेरे खबर नहीं आत्मा कौन है जीव का। वो जीव को तो ही न आत्मा को तो ही, ये जीव का क्या परिणाम लिया था, ये आत्मा का परिणाम लिया। भगवान आत्मा परम स्वभावी चैतन्य मूर्ति जो अनादि अनंत द्रव्य ने गुण से भरा पड़ा है, उसमें से प्रकट होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा का अवस्था का प्रकट होना, वो परिणाम है, वो पर्याय है, वो अवस्था है, वो हालत है। वो तीनों की एकता हालत को यहाँ मोक्ष मार्ग कहने में आया। समझाय छे काई? भाई बात तो स्पष्ट तो घणी आवे, पण हवे पकड़વું तो के एने पकड़વું तो कोई पकड़ावी देવું છે। तीर्थंकर आवे तो कोई को समझाई देते हैं। तो अनंत बेर तीर्थंकर का समोषण में भी अनंत बेर गई, अनंत बेर गई, और वर्तमान भगवान विराजते महाविद्य क्षेत्र में साक्षात समोषण श्री सिमंदर परमात्मा आदि 20 तीर्थंकर विराजते हैं यहाँ। ऐसा समोषण में महाविद्य क्षेत्र में जन्म लिया, अनंत बेर गई। क्या हुआ?
अपना स्वभाव अपने में समझ में न आवे तो तीर्थंकर भी समझाने में ताकत है नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं साम्य वो आत्मा का परिणाम है। परिणाम कहो, पर्याय कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, दशा कहो के द्रव्य गुण नो एक अंश कहो। पर्याय ने अंश कहेवामां आवे छे। द्रव्य गुण की अंशी है। उसमें भी तकरार लिया था कि तुम सम्यक दर्शन ने पर्याय को हमें हमने आई गई आई तो परिणाम तो क्यों पण हवे गाथा में चोखू कहशे। बस मैं आई परिणाम तो ले लिया है। समझ में आया? इसलिए संयत का साम्य लक्षण है, संयत का वितरागी शुद्ध उपयोग लक्षण है। ये मुनि का द्रव्य लिंग नग्नपना ये लक्षण नहीं। और इच्छा भी मूल गुण पालना का विकल्प पंच महाव्रत का अचील रहना, एक बार भोजन उबा उबा भोजन खड़ा, ऐसा इच्छा भी विकल्प उठते हैं राग, वो भी संयतपना का लक्षण नहीं। ओ देखो आ तो के इच्छा भी मूल गुण पालते हैं ना, इच्छा भी मूल गुण पालते हैं, मुनि ने पालते हैं कि मूल गुण तो आश्रय है, विकल्प है। पंच महाव्रत पालते हैं, पंच महाव्रत तो राग है। जैसा हिंसा झूठू चोरी का पाप भाव है, ऐसा अहिंसा शब्द का भाव पुण्य है। दो विकल्प है, राग है, पर तरफ का लग जाते हैं। तो क्या आश्रम को पालना वो संयत का लक्षण है? अजी तो खबर नहीं कि आश्रम किसको कहते हैं અને સંવર किसको कहते हैं। પોતાની कल्पना ये घोड़ा दौड़ावे जाए, घोड़ा समझते हैं? अश्व कहते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। वो कल्पना से ऐसा होता है, पीछे ऐसा होता है, पीछे ऐसा। अरे सुन तो सीख आ तो सर्वज्ञ परमात्मा की पेटी है। त्रिलोकनाथ परमात्मा जिसको 100 इंद्र पूछते हैं है, जिसका गणधर अंतर्मूर्त में 4 ज्ञान 14 गुरु की रचना करते हैं। इसकी पेटी की बात तेरे समझा बिना जहां तहां दर्शन ने धर्म लगा देते हैं। बड़ी जवाबदारी तेरे माथे है। समझ में आया? ओहो, साक्षात परमात्मा विराजते हैं महाविद्य क्षेत्र में, गंधर्व विराजते हैं क्या महाविद्य क्षेत्र में। समझ में आया? वही आप कथन करते हैं दिवधनी में, गंधर्व भी वही रचना करते हैं। वही भगवान कुंकुंडाचार्य यहाँ से 8 दिन ત્યાં गए थे, रहे थे साक्षात भगवान पास। ओहो, भरत क्षेत्र का मानवी ये महावीर ना भगवान नी जात्रा। हाँ हाँ, समझ में आया? भरत क्षेत्र का मनुष्य संवत 49 लगभग की बात, पहला संख्या की हो, नग्न दिगंबर मुनि साक्षात भरत में से महावीर, साक्षात समुद्र में वर्तमान विराजते हैं। वो समय में वही भगवान था। यहाँ तो करोड़पुरु का विषय न 5-6 धनुष का दे, तो करोड़पुरु में तो एक पुरु में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष चला जाता है। भगवान जाने क्यों हुआ। एक पूर्व में 70 लाख करोड़ અને 56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व है। ऐसा करोड़ पूर्व का भगवान का विषय है। ऋषभदेव भगवान का 84 लाख पूर्व का विषय। समझ में आया? तो भगवान पास जाकर आ वस्तु है, हम चारित्र धर्म वाला, हम चारित्र का क्या पहलू कहीं सुन नहीं, कहीं सुन आ प्रणेता उभा कहीं सुन भाई पहली है आ मैं खड़ा, ऐसा कहा था। हाँ तो हिंदी है ना, इसलिए बहुत खबर नहीं है। आ ये पहली गाथा में छेलू तो श्रावण को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, पहली गाथा ना छेल्ला शब्दों। पहली गाथा किसने आचरणा नहीं क्यों चलती है ना, एक तो ये नहीं पहली गाथा 201 देखो
ओहो, श्रावण को अंगीकार करने का यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम यह खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, देखो है लिखा है। हाँ देखो क्या लिखा है, बोलो जैसे बोलो, तुम बोलो तो खरा, कितना बोलने में आते हैं। हाँ हाँ है इसका, हम यह खड़े हुए हैं। वो गुजरत में है, ठीक है। हाँ हाँ, उभा, हमें यहाँ उभा खड़ा हुआ है, क्या उभा। हिंदी जो हिंदी भाई, ये हिंदी लो हिंदी। क्या कहते हैं, अरे साधु पद क्या है, यथानुभव, देखो नीचे किया है ना, यथा जैसा आपने हमने अनुभव किया है, चारित्रकवंत कैसा है ऐसा हम अनुभव किया है, हमारा में चारित्र वर्त हैं कहते हैं। यथानुभव चारित्र दर्शन ज्ञान पूर्वक कैसा है, उसका प्रणेता कहने वाला हम या खड़ा है। चारित्र किसको कहते हैं, दर्शन ज्ञान पूर्वक संयम किसको कहते हैं, हमारा में प्रकट है, वो हम तुमको कहते हैं। तो बोला जी, हाँ हाँ हाँ, देखो तो भाषा साक्षात भगवान का फीका करके आई ने। आह्वान साधु पद किसको कहते हैं, चारित्र ने मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं, उसका कहने वाला हम खड़ा हुआ है। भगवान भाई, हाँ हाँ हाँ, भगवान कहते हैं ऐसा होगा एम नहीं, हम कहते हैं कि साधु पद हमारा में ऐसा है, ऐसा साधु पद की व्याख्या करते हैं। समझाई थे कुंकुंदाचार भरत क्षेत्रना प्रभु जेने शास्त्रनी रेलम फेल कर दिया, साक्षात भगवान पास प्रवाह आया। वस्तु ऐसी है, तुम जो सुनो विचार करो प्रति मार्ग हम कहते हैं ऐसा, हमारा चारित्र का अनुभव है हम कहते हैं। तो समझ में आया, इसलिए संयत का साम्य लक्षण है। ऐसा जो बोला इच्छा मूल लक्षण हमने कहा, साधु पद का इच्छा महाव्रत लक्षण है ऐसा नहीं कहा। ऐसा महाव्रत का राग तो अभी भी आनंदवार पालते हैं, क्या आया तेरे अंतिम ग्रेक जाते हैं भवी मुनिवर्त धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो, कौन आचम ज्ञान बिन ले सुख ना पायो। धर्म आते हैं अनंत बैर भवी और अभवी, शुक्ल लिखा ऐसी शुक्ल लिखा, शरीर का खंड खंड हो तो क्रोध न करे। दूसरा देवलोक की इंद्राणी चलायमान आते चले नहीं, और भिक्षा माटे जाए तो एक उसके माटे पानी का बिंदु असंग जीव है, उसके माटे बनाकर खाल आज मेरे माटे बनाया, प्राण जाए तो न ले। ऐसी जिसकी क्रिया पर अंतर में ये क्रिया मैं करता हूँ, राग आया वो मेरा धर्म है, ऐसी बुद्धि रहेगी, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? कहते हैं कि संयत का लक्षण तो स्वयं है। अरे स्वयं क्या है, स्वयं का स्वरूप वो विषय दर्शाते हैं। शत्रु बंधु वर्ग में सान्य भाव, विनय, शत्रु हो कि विरोधी हो, वो ज्ञान का विनय है। दो भागे है नहीं ज्ञान में, आ मेरे को अनुकूल आ मेरे प्रतिकूल चीज में है नहीं, वो वस्तु में रिजवड़ नहीं किया क्या मेरे अनुकूल ना मेरे प्रतिकूल। हाँ वस्तु में रिजवड़ है क्या, वो ज्ञेय है, मेरे जानने की चीज है। अनुकूल प्रतिकूल कोई चीज है मेरे में नहीं, उसमें भी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक साम्य भाव का लक्षण हुआ। चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी, तो बड़ा अधिकार आया। सवेर में भी अनंत धर्म शक्ति की आई थी। कहते हैं
शत्रु बंधु का वर्ग, वर्ग नाम समूह, शत्रु का समूह हो कि मित्र का समूह हो, मेरे में शत्रु मित्रता का विकल्प ही नहीं। सब मेरा ज्ञान में ज्ञेय है, प्रमेय है, उसमें प्रमेय होने की लायकात है। मेरा ज्ञान प्रमाण में, मेरा ज्ञान प्रमाण में व्यवहार प्रमेय होने की लायकात है, पर कोई शत्रु मित्र होने की लायकात कोई चीज में त्रणकाल में है नहीं। समझ में आया? ऐसी ज्ञान दर्शन पूर्वक अंतर शुद्ध उपयोग की रमणता साम्य उसको चारित्र कहता है। सुख दुख में क्या, सुख दुख में कल्पना उठती है सुख ने दुख में नहीं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिला उसको यहाँ सुख दुख कहते हैं। प्रतिकूल संयोग को दुख कहते हैं, अनुकूल संयोग को सुख कहते हैं। दो ही ज्ञेय है, मेरा ज्ञान में ज्ञेय है। अनुकूल प्रतिकूल मेरी चीज में नहीं है ना, वो चीज में छाप नहीं कि अनुकूल है न प्रतिकूल है, उसमें छाप पड़ी है ज्ञेय की। मेरा ज्ञान में जानने लायक चीज है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को शत्रु मित्र तो कोई है नहीं उसको भी, पर उसको जरी अस्थिरता आती है तो लड़ाई करने का भाव सम्यक दृष्टि को होता है। जाने का पाप भाव है, पर वो शत्रु है तो मेरे भाव आया ऐसे नहीं, अने भाव आया तो आज शत्रु को मार डालूंगा ऐसे नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसे मानते नहीं। भाव अशुभ आया वो तो चारित्र नहीं माके। समझ में आया? और सम्यक दृष्टि को स्त्री कुटुंब रहते हैं, स्त्री कुटुंब के कारण नहीं, अपने में राग आया पाप समझते हैं कि पाप है, मेरी चीज की वो चीज नहीं, और मेरी कमजोरी से वो परिणाम आया। ये वस्तु के कारण से पाप नहीं आया कि स्त्री ऐसी अच्छी थी तो पाप हुआ, अने पाप आया तो उसको प्रति अनुकूल मान लेते हैं, ऐसा भी। पर मेरे में अस्थिरता का राग ऐसे जानते। मुनिपना में वो आता नहीं, वो राग ने द्वेष एक भाव हो गया सान्य स्वभाव। पर को जानना और मेरे को जानना निश्चय से, पर को जानना हो व्यवहार से, ऐसा ज्ञेय हो गया। ऐसी जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक क्षमता अंतर में वितराग परिणति बहती हो, उसको संयत का लक्षण कहने में समझ में आया? अरे गणधर, तीर्थंकर का गणधर छठे गुणस्थान विराजमान हो, और जब नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग चौदपुर की रचना करते हो तो 5 नौकार का गिनने में आते हैं। ओहो नमो लोई सौता, हे गंधर पण एम कहे, हे संत तारा चरण में मारो नमस्कार। की केवा संयत है जेने गणधर नो नमस्कार पहुंचे। समझ में आया? है विकल्प, परमेष्टि का बंधन करना है विकल्प, शुभ राग है। पर वो शुभ राग में गणधर ऐसा करते हैं, भगवान पास विराजमान गंधर वर्तमान है। गौतम गंधर को मोक्ष पधार गई केवल ज्ञान पर गंधर विराजमान। नमो वायुयान पेला पद तो सिद्ध देव है, गुरु तीनों नमो। तो आप तो आचार्य ने तो छोटा आचार्य को क्यों नमस्कार कर, नमो उपाध्याय के क्यों कि नमो लोई। जो साधु अपना स्वरूप सर्वज्ञ कहते हैं ऐसा नमो लोई संसार ऐसा नहीं, सब साधु हो जैन आगे नमो लोई। जब जो साधु ऐसा नमो लोई एक मुड़ी ऐसा अर्थ करते हैं। तो काल ऐसा कोई स्वतंत्र हो गया है? मोटे मोगती मोटी भाषण आपे मोटा मोटा देश नेताओं नमो लोई संसार, उसमें क्या कहा जैन का साधु को नमस्कार है भगवान।
साधुनी व्याख्या आसान लक्षण है। सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक सन्नता होना वो साधु का लक्षण है। ऐसा जैन का वास्तविक साधु उसको गणधर नमस्कार करते हैं। समझ में आया? इतनी बड़ी पदवी ये साधारण मानस मान ले कि हमें साधु है न संयत है, ठीक है। नीम में नीलमणि मान लेना, नीम की लिंबोड़ी, लिंबोड़ी कहते ना, कोई ना पड़े कहीं એમાં કઈ હક લાગે છે કઈ કે લાય દાન આટલું લીંબોળીને નીલમણી માનવાનું આટલું દાન દેવું પડશે? શું કહેવાય? દાન 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 દેવું પડે? હે દાન સમજते? कस्टम, कस्टम उसको देना पड़े कहीं? नहीं, हम मानते नहीं, मानो टैक्स नहीं देना पड़ते उसको। हाँ, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान सहित संयत क्या है समझ में नहीं, ओळखाण नहीं, पहचान नहीं, सुना नहीं, माने हम है नहीं उसका कोई माथे कष्टम है, कष्ट खरो, कष्टम नहीं है पर है कष्ट खरो। कष्टना मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या रागद्वेष में साधुपना मान बड़ा कष्ट है तेरे। समझ में आया? तेरी चीज क्या है तेरी को खबर नहीं। तो कहते हैं सुख दुख में, सुख दुख का अर्थ संयोगी अनुकूलता प्रतिकूलता की व्याख्या करें। सुख की कल्पना उठी, दुख की कल्पना उठी में संभाग, ऐसा नहीं। सुख दुख का संयोग में ज्ञेय रूप है। 1000 मीठी डंखो और कोई चंदने चोबड़ो, यही है नहीं जानने लायक चीज है। वो मेरे को छूटी नहीं नहीं, अनुको विधि का दम शरीर को छुया नहीं, तीन काल में छूते नहीं। अज्ञानी को भी विधि का दम शरीर में छुया नहीं, परद्रव्य परद्रव्य में कहां से छुए? तो शरीर में जो हुआ तो मेरे छुया है। वो मान्यता मिथ्या दृष्टि के है। शरीर परमाणु है, वो अपनी पर्याय में क्या छूता है? स्पर्श करता है। हमारी भाषा में अड़ते हैं, काठियावाड़ी में हमारी भाषा में छूते है। कोई द्रव्य की पर्याय, कोई द्रव्य की पर्याय को कभी छूते नहीं थे इन काल में, खबर न मिले। जय नारायण। समझ में आया? तो कहते हैं सुख दुख संयोग ज्ञेय है, मेरा ज्ञान का विषय है, मेरे सुख दुख मेरे में नहीं। प्रशंसा निंदा, लाख करोड़ चक्रवर्ती आकर पगे लागे, ध्यान में बैठो बावल नीचे, बबूल नीचे, बावल कहते हैं ना, कांटा वाला झाड़ हो नीचे, शरीर काला हो, ध्यान में शांति में सांबा सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक हो, ऐसा ध्यान करके ज्ञानी बाबा ने जैसे तैसे वो जानदा नहीं। समझ में आया? हाथ लगा देते कि नहीं? कहीं ठोक नहीं आने बाबा ने वही तो वही दे ऐसा करे। शू कहवाय तमारू जी? समाधि, समाधि किया था, कई किया था, डिंगे डिंग मारी ऐसा नौड़ी कर्म ने कर्म फल किया था। अरे भगवान, क्या आत्मा है, और एक एक आत्मा में अनंती शांति की अनंत शक्ति पड़ी है, उसकी परिणमन वर्तमान में होता है। ऐसी वस्तु की स्थिति अंतर में जाने बिना सम्यक ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, तो चारित्र कहां से आया, ज्ञान कहां से, धूल में से आया? लगा दे 4-4 महीना સુધી जड़ है, जड़ हो जाएगा। बोलंदाज भाई, वस्तु है ऐसी समझ तो नहीं। आंखों नीचे में क्या है? एक कंदरी को आंखों है ही नहीं। वनस्पति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, उसको तो आंख, ये आंख नीचे नहीं पड़े होते। क्या है तेरे? भगवान आत्मा की आंखों अंदर क्या है उसकी तो खबर नहीं। मैं चीज क्या हूं, मेरी दशा क्या है, मेरी शक्ति कितनी है, मैं पर का कार्य करता नहीं, मेरे से
ईश्वर से मेरे में किंचित लाभ होता नहीं। राज का विकल्प उठते हैं उससे मेरे किंचित लाभ नहीं। व्यवहार रत्नत्रय उठते हैं उससे मैं किंचित लाभ नहीं। ऐसी भी जिसको खबर नहीं माने ध्यान में बैठे मूड हो जाएगा। ध्यान कैसा आया? आई तो कहते हैं प्रशंसा निंदा में समता। चक्रवर्ती चले जाता हो हाथी ऊपर और मुनि बैठे हो बबूल के नीचे, आत्मा का शांति में आनंद में झूलते हो। चक्रवर्ती मुनि है, चक्रवर्ती धर्मी हो ज्ञानी तो मुनि को उलंकर न जाए। ओ धन्य होता ऊपर से उतर जाए, हाथी से उतर जाए लश्कर बकरी। अरे यहाँ मुनि महाराज आत्म ध्यान में बिराजे हो रही, वंदन करे बिना ऐसे न चले। ऐसा चक्रवर्ती वंदन करे तो शांति। मेरे में कुछ नहीं, वंदन करो तो उसकी निंदा करो तो समझ में आया? प्रशंसा निंदा में संभाव। તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 241મી ગાથાનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।